हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I am going to discuss the revision test paper that has been released by the Institute for upcoming November 23 CA final examinations for income tax. We are going to discuss the objective part of the RTP. Before directly going on to the questions, let us first understand that what is the study material that is relevant for the upcoming examinations. So it is very important to keep in mind that the modules along with the supplementary study paper are to be studied, and the assessment year that will be applicable is assessment year 23-24. So what are the relevant materials that you need to go through? The October 21 edition of the study material has to be read along with the supplementary study paper 22, जो कि already portal पर भी uploaded है, containing the provisions of Finance Act 22 updated up to 31st of October 22 and the statutory update and judicial update. I have released separate videos for all of these things, so you can go through them for having a quick overview of what are the amendments that have been given for the November 23 examination. Both these things have been web hosted on the portal, so you can just go through them. Now let us go through the questions that have been provided. So first, case scenario. Now the case scenarios that have been given in this particular RTP, the first case scenario is based on our search, survey and assessment procedures provisions of our Income Tax Act. So let us discuss case scenario 1. Now, whenever you are discussing or solving any case scenario, I have also uploaded some videos of the case scenarios that have been given on the case scenario booklet, some of them which were quite important. और हर उस केस सिनेरियो में मैंने यही बातें आपको बताई हैं कि जब आप रीड कर रहे हैं तब उन में से, जब आप पढ़ते जा रहे हैं तब उन हर सेंटेंस में से, हर एक पॉइंट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखते जाना बहुत जरूरी होता है whenever you are solving any case scenario based question. And you can't just go and read on the case and then again बाकी आपका टाइम unnecessary उसमें वेस्ट होता है. सो क्या करना है, जब हम पढ़ रहे हैं तभी कोशिश करें कि मेन पॉइंट्स जो हमें लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है उनको हम वहीं अब्सॉर्ब करते जाएं. उन सेक्शंस, उन सेंटेंसेस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हमने पढ़े हैं उन्हें हम दिमाग में घुमाएं ताकि हमें एक क्लैरिटी आते चले कि हाँ ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू दिस, ओके फाइन, दिस इज रिलेटेड टू दिस, सो दैट इट मेक्स अस इजियर टू कनेक्ट द क्वेश्चंस टू द पैसेज. दैट इज द केस सिनेरियो. चलिए, सो केस सिनेरियो 1. The assessing officer, with prior approval of Chief Commissioner of Income Tax, surveyed the business premises of A Limited, which was within his jurisdiction, at 9 p.m. on 1st of June 2022 for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceedings under Income Tax Act. किसी proceeding से related survey हुआ है. The survey operations were continued till 11 p.m. ठीक है, 9 बजे शुरू हुआ, 11 बजे तक सर्वे चला. On 15th of June, the assessing officer entered the business premises of B Limited, which was also within his jurisdiction, at 8:30 p.m. for the purpose of collecting information which may be important or may be useful for the purpose of Income Tax Act. यहाँ पर proceeding word जो है वो यूज नहीं हुआ है. And left the premises at 9:30 p.m. ठीक है. The business premises of A is kept open for business every day at 10 a.m. to 10 p.m. and the business premises of B is kept open from 9:30 a.m. to 9:30 p.m. ये हमको उन्होंने टाइम दे रखा है, तो दोनों की एंट्री तो टाइम के अंदर ही हुई थी, बिजनेस आवर्स के अंदर ही हुई थी. In both the above cases, assessing officer impounded and retained in his custody for a period of 12 days, inclusive holidays, books of accounts and other documents inspected by him after recording the reasons for doing so. दोनों की books उसने impound कर ली. The assessing officer, however, did not take specific permission from Chief Commissioner for this action. In July 2022, the business premises of C Limited was searched after following the due procedure laid down under 132. Search.
consequent to which assessing officer has in his possession documents showing information pertaining to shares of value 28 lakhs purchased in 16-17 and shares of value 21 lakhs purchased in 17-18। दो अलग अलग बातें हुई हैं, एक सर्च से रिलेटेड है, एक सर्च के अलावा के जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड या सर्वे रिलेटेड सेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड है, बट द होल केस इज बेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज का जो चैप्टर है उसमें देखते हैं, राइट। चलिए, सो एक बेसिक आइडिया आ गया कि तीन अलग अलग पर्सन दिए ए बी सी, तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक्सरसाइज करे हैं। क्वेश्चन में गिवन है किस चीज के लिए अप्रूवल लिया, किसके लिए अप्रूवल नहीं लिया, क्या क्या एक्शंस असेसिंग ऑफिसर ने लिए, बुक्स इंपाउंड कर लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमें क्या क्या चेक करना है वो देख लेते हैं ना, केस तो समझ में आ गया। इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर in entering the business premises of A at 9 p.m. and continuing the survey operations till 11 p.m. valid? Also, is the action of assessing officer entering the business premises of B Limited at 8:30 p.m. valid? So yes, दोनों के केसेस में ही entering is valid as per the time. Yes, the action of assessing officer in both cases is valid. Is the action of assessing officer in impounding and retaining the books of accounts and other documents of A and B Limited after recording the reasons valid where he has not taken specific permission of Chief Commissioner for this action? Now, for this, let us go to the basic provisions of Income Tax Act, जो कि यहाँ पर हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ए, जिसके केस में हमारी प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग है, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है ना। यहाँ पर हम अगर सर्वे का जो रिस्पेक्टिव पॉइंट है वो कंसिडर करें, आई एम गोइंग ओनली टू द मेन पॉइंट दैट इज रेलेवेंट फॉर द गिवन केस, कि यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। So the particular income tax authority has the power that the particular authority can, what are the permissible and impermissible acts conducting survey? He can impound and retain in his custody for such period as he thinks fit any books of accounts or documents inspected by him after recording the reasons। तो ये सब तो उन्होंने किया, impound किया, reasons record करे कि क्या reasons है जिस वजह से हम custody में ले रहे हैं। However, the income tax authority cannot retain such books for a period exceeding 15 days excluding holidays without obtaining approval of the required authorities। तो basically in this case, हमारे given case में जो नंबर ऑफ डेज दिया है वो 12 डेज दिया है। तो इन दिस केस ए लिमिटेड की केस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आपके पास अथॉरिटी है, आप बिना बात किए भी जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कस्टडी में लेकर के जा सकते हो, और इसके ऊपर जो भी आपको लगते हैं कि हाँ हमें ये सब इम्पाउंड करने हैं, वो सारे रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद आप इम्पाउंड कर सकते हो। However, in this case, B Limited is not being covered. The reason being that यहाँ पर B Limited की केस में कोई proceeding pending नहीं है। Clearly section mentions that proceeding should be pending. So therefore, in case of B Limited, the action exercised is not correct. So A Limited की केस में तो impound किया जा सकता है, but B Limited की केस में जो action लिया गया है वो valid नहीं है। So action of assessing officer is valid in case of A Limited, but not in case of B Limited. चलिए, moving on to the next question. Can the assessing officer issue notice under 148 to A Limited in August 22 in respect of AY 1920, 2021 and 2122 consequent to the survey conducted? अब जब सर्वे का केस होता है तब रीअसेसमेंट अगर स्टार्ट करना है तो डिपार्टमेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड 148A का जो इंक्वायरी का प्रोसेस है असेसमेंट के नोटिस से पहले, वो पहले फॉलो किया जाए। इन केस ऑफ सर्च it is considered as deemed information and therefore it is also given a concession that you do not require to conduct inquiry under section 148A, but in case of survey there is no such concession. So though in case of survey, yes, reassessment can be started, but after following the process under section 148A. So in this case, yes, he can start the reassessment process as the years are also within the time limit, but only
आफ्टर द कंप्लायंसेस ऑफ 148A हैव बीन फुलफिल्ड। इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, फिर उस इंक्वायरी में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। वहां पर अगर डिपार्टमेंट को लगता है इंक्वायरी के बाद कि इट इज स्टिल अ फिट केस टू इशू अ नोटिस फॉर like income escaping assessment, then only the notice can be issued under section 148. Would the action of assessing officer entering premises of A Limited at 9 p.m. and impounding and retaining books valid if he had surveyed only for the purpose of verifying whether tax has been deducted or collected in accordance with the provisions of Income Tax Act? तो सर्वे में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। जो एक सेकंड पार्ट होता है आपका, वो टीडीएस टीसीएस की इंक्वायरी से रिलेटेड होता है। और टीडीएस टीसीएस की इंक्वायरी से रिलेटेड उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दैट यू कैन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सो ये छोटी छोटी बातें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। When you are discussing the chapter income tax authorities, like you are studying the chapter income tax authorities, search, सर्वे, ये 2-3 सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनके एक एक वर्ड, एक एक लाइन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और इस बार ये जो केस सिनेरियो आपको दिया है, उन्होंने काफी मतलब बहुत माइन्यूट पॉइंट्स में से दिया है, जो बहुत बार पढ़ते पढ़ते हो सकता है हमारा ध्यान भी नहीं जाए। इसलिए मैंने आपको पढ़ते समय भी चीजों को हाईलाइट करवाते मैं गई, ताकि आपको एक आइडिया आए कि एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको लिखा हुआ है कि जब आप टीडीएस टीसीएस की केस में अगर आप एंटर कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो यस आप कर सकते हो। द इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एन ऑफिस वेयर सच बिजनेस इज कैरीड ऑन आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट ऑल्सो। तो यहाँ पर आपके पास सनराइज सनसेट तक ही जाने का अथॉरिटी है। एंड साथ में ही अगर आपका जो केस है वो टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड है, तो आप सनसेट के बाद एंटर नहीं कर सकते हो। सो लेट अस टॉक अबाउट द गिवन केस। व्हाट इज गिवन? तो यहाँ पर क्लियरली उसने बोला है अगर डिडक्शन कलेक्शन का केस है तो फिर 9 बजे आप एंटर नहीं कर सकते थे। नो, द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग प्रीमाइसेस एट 9 पीएम एंड इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट वैलिड, क्योंकि जो केस है वो हमारा टीडीएस टीसीएस इंक्वायरी से रिलेटेड है rather than the main survey. And the assessing officer issue notice under 148 for bringing to tax income escaping assessment in case of C Limited without following the conditions stipulated in 148A. हाँ देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्च की केस में आपको 148A को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही है, आप डायरेक्टली नोटिस इशू कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई भी नोटिस 148 में इशू किया जा रहा है तो आपको टाइम लिमिट के बारे में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। So whenever you are answering a question in case of MCQ especially, you have to be very comprehensive or you have to think about different provisions as well. See क्या होता है जब हम थ्योरी लिख रहे होते हैं, तो मान लो आपने ये लिखा कि in this case as search is conducted 148A आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने लिख दिया therefore the assessing officer can open the reassessment case in this particular case and issue a notice under 148, हो सकता है कि आधा आंसर सही है आधा गलत है, कंक्लूजन गलत है। बट अगर आपने सर्च रिलेटेड प्रोविजन सही लिख दिया होगा तो हो सकता है उसके थोड़े बहुत मार्क्स आपको दिए जाए। पर वही क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आता है, आप ऑप्शंस देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं आपको। yes he can do so with the prior approval of 151. No, he cannot. He can do so after following the compliance of 148A. No, he cannot issue notice since 3-year time limit has expired. No, he cannot issue shares notice since shares do not file within the meaning of asset. तो अब आपको एक ओवरऑल पूरे सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि गलती कहाँ हुई है, नोटिस क्यों नहीं इशू किया जा सकता, टाइम लिमिट की वजह से या फिर 148A के कंप्लायंस की वजह से, या फिर नहीं दोनों सही है, टाइम लिमिट भी बराबर है, ये भी बराबर है, आप तो इशू कर सकते हो। सो वो जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने से व्हेनेवर अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, whenever you are solving any question, not necessarily MCQ, but MCQ में ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक आपने टिक कर दिया वो बस फिर वही बात खत्म हो जाती है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आंसर को। तो पार्शियली अगर सही सोचा होगा तो भी उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। वेयर एज इन सब्जेक्टिव यू एक्सप्लेन तो आधा सही होगा तो एटलीस्ट उतना तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना। नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग, थिंक, जब आप सॉल्व कर रहे हो 2 मिनट शांति से सोचो
कि 148 में क्या बोला है सर्च के केस में कि हाँ ये किया जा सकता है. फर्स्ट रिवाइज द प्रोविजन, डोंट बी इन अ हरी. वी आर नॉर्मली इन अ हरी कि चलो क्वेश्चन आ गया फटाफट सॉल्व करके खत्म करें, एंड आई अंडरस्टैंड दैट थिंग कि एग्जाम है, प्रेशर है, बट कोशिश करें कि पहले हम एक बार प्रोविजन को रिवाइज कर लें. तो इन दिस केस 148 ए जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट तो फॉलो करनी पड़ेगी, 3 साल के तो अंदर होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा जो केस है, क्या हम 3 साल के अंदर फॉल हो रहे हैं? सो हम कौन से साल का असेसमेंट ईयर ओपन करना, हम कौन से साल का असेसमेंट ओपन करना चाह रहे हैं? हम असेसमेंट ईयर 17-18 और 18-19 का असेसमेंट ईयर ओपन करना चाह रहे हैं. तो पहले पीछे वाले को देख लेते हैं. अगर 18-19 का हो सकता है तो फिर 17-18 पे जाएंगे. अगर 18-19 का ही नहीं हो सकता तो 17-18 तो चला ही गया. तो असेसमेंट ईयर 18-19 से अगर हम एक बार काउंट करके देखें तो क्या हमारा जो पीरियड है, या if the question specifies the assessment year, then let us first check that. I guess the question specifies the assessment year. No. So relevant assessment years मतलब हमें चेक कर लेना है. Now in this case our case is related to 17-18 and 18-19. So we have to check the 3-year time limit. We can clearly see that the 3-year time limit has already expired. तो इन दिस केस क्योंकि हमारा 3 साल का टाइम लिमिट जा चुका है, हम केस नहीं ओपन कर सकते. अब यहाँ पर एक और बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक 10 साल वाला टाइम लिमिट भी होता है, पर वो 10 साल वाला टाइम लिमिट हर केस में अप्लाई नहीं होता. तो जब आप दिमाग में चीजों को घुमा रहे हो, हर एक प्रोविजन के सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना जरूरी है. अगर इस पर 10 साल वाला लग जाए तो आप इसको ओपन कर पाओगे, बट क्योंकि इस केस में आपका अमाउंट जो है वो 28 और 21 lakhs का गिवन है, आपका 10 lakhs वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो, 10 years वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप असेसमेंट ओपन नहीं कर सकते. सो आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ गया? No, he cannot issue notice since the 3-year time limit from the end of assessment year has expired. Can the assessing officer issue notice under 148 for bringing to tax income escaping assessment without following compliances if the shares purchased were 30 instead of 28? हाँ, अब हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 50 लाख वाला जो आपका लिमिट है उसके पार चला गया, और क्योंकि वो उसके पार हो गया है, आपके पास 10 साल का लिमिट ओपन हो गया, और अब आप इसके ऊपर 10 साल के हिसाब से नोटिस इशू कर सकते हो. आपको कंप्लायंस 148 ए का भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो यस, यू कैन डू विदाउट द प्रायर अप्रूवल, सॉरी विद द प्रायर अप्रूवल. अप्रूवल लेना पड़ेगा, 148 ए की इंक्वायरी करने की अलग से जरूरत नहीं है. सो कैसे स्टेप वाइज आपको समझना है. इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं, डीम्ड इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में तो नहीं आ रहा. इवन इफ इट इज इंफॉर्मेशन और डीम्ड टू बी इंफॉर्मेशन, देन इज 148 ए नेसेसरी इन दिस केस. अगर 148 ए नेसेसरी है तो भी क्या हमारा केस टाइम लिमिट के अंदर आ रहा है? सो वो एक एक स्टेप वाइज आप सॉल्व करते करते पूरा केस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ एमसीक्यू दैट यू मे फाइंड मोर देन वन आंसर करेक्ट. So keep in mind all the permutation and combinations, and then सबको consolidate करके आपको सोचना पड़ेगा ताकि आपका जो आंसर है वो सही निकले. So this is the case scenario 1, which deals mostly with the powers of assessing officer and assessment procedures. चलिए, let us talk about the case scenario 2. Again a very important case. This case they have given on cooperative societies, which is again a very new topic. New topic in the sense mostly not asked in examination since the past years. If we see, बहुत ज्यादा फाइनल लेवल में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्सेशन पे बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नॉर्मली नहीं होता है. तो पर इस केस सिनेरियो में उन्होंने काफी अच्छे केसेस दिए हैं, और ये तो मतलब यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट whenever I always say this, expect the unexpected. So there is a possibility कि जिस चीज पे कभी से क्वेश्चन नहीं आया आपको एग्जाम में दिख जाए. सो इसलिए कोई भी चीज छोड़ करके नहीं जानी हमें एग्जाम में. Following are the details about Alpha Cooperative Society, referred to as Alpha, Beta and Gamma Cooperative Bank. Gamma is bank. For the previous year 22-23, Alpha Cooperative is engaged in providing credit facilities solely to its members. अब जब cooperative society की बात हो रही है तो आपको एक चीज तो दिमाग में आई गई होगी कि इस पे ATP के बारे में बातें हो सकती है ना. ATP is a good and important section. Is engaged in providing credit facilities solely to its members. The profits and gains from which is 20 lakhs for the previous year 2023.
Alpha Corporation Cooperative Society also derives interest of 3 lakhs from investment in any other cooperative society. तो दो नेचर हो गए इनकम के. मैंने इसका एक समरी टेबल बना रखा है ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कि अल्फा का क्या क्या इनकम है, बीटा का क्या क्या है और गामा का क्या है. पहले पढ़ लेते हैं. Beta is engaged in marketing of agricultural produce grown by its members, profits and gains from which is 40 lakhs. It has employed 8 new employees with salary 22,000 per month. Again, जहां नए एम्प्लॉय की बात आती है, बिल्कुल आपके दिमाग में आ ही जाता होगा कि ATJJAA भी यहाँ पर हो सकता है अप्लाई. Salary is paid by ECS, gets his books of accounts audited, तो 44A भी अप्लाई हो रहा है. ATJJAA का प्रिलिमिनरी कंडीशन तो फुलफिल हो गया. It also earns interest of 12 लाख on FD with Axis and ICICI बैंक. ठीक है, तो इसके दो सोर्सेस हो गए, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला चीज और दूसरा FD इंटरेस्ट. Gamma is bank, cooperative bank, engaged in banking business in Bangalore. The profits and gains from which is 110 lakhs. It also gets its books of accounts audited. It is not a primary agricultural credit society or a primary cooperative agricultural and rural development bank. ठीक है, तो नॉर्मल एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है. अब तीनों की समरी हमने लिख ली है ताकि हमें एक समझने में आसानी हो. अल्फा जो है वो क्रेडिट दे रही है अपने मेंबर्स को, बेटा जो है वो मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है मेंबर्स का, और गामा जो है वो बैंकिंग बिजनेस में है. ये इनके नेचर ऑफ सोर्सेज और इनकम्स हैं. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. वुड अल्फा एंड गामा be entitled to deduction under ATP for AY 23-24 if they do not opt for 115 BAD. अब BAD again alternative regime for cooperative societies. BAD में अगर आप चले जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली ATC to ATU से बाहर हो जाते हो एक्सेप्ट फॉर ATJJAA. तो अगर आप BAD में जाते हो तो आप ATP ले ही नहीं पाओगे. तो उनका कहना है कि हम मान के चले BAD में नहीं जा रहे, ऑल्टरनेटिव रेजिम में नहीं जा रहे, तो क्या हम ATP क्लेम कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं क्या हम ATP के लिए एलिजिबल हैं. अल्फा और गामा के बारे में बात हो रही है. अल्फा इज एलिजिबल as it is engaged in the business of giving credit to its members and also interest और investment in another cooperative societies. दोनों ही इनकम्स हमारी एलिजिबल हैं. जो गामा है वो कोऑपरेटिव बैंक है और प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी या रूरल डेवलपमेंट बैंक वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा है. यहां पर हम ATP से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं. सो फॉर रेफरेंस लेट अस आल्सो वंस गो थ्रू ATP बिकॉज बहुत ज्यादा पूछा हुआ नहीं होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो एक बार आप रिवाइज भी हो जाएगा आपका. सो लेट अस जस्ट गो थ्रू सेक्शन ATP कि हमारा जो सेक्शन है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, एक ये एक्टिविटी दिखी थी हमको. कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स जो अल्फा कर रही है. इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो डिडक्टेबल. तो ए तो पूरा फ्री हो गया ATP में. स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि कमर्शियल जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो ATP के लिए एलिजिबल नहीं है ताकि वो कमर्शियल बैंक्स के एट पार आ सके. सो क्लियरली आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो गामा लिमिटेड है दैट इज गामा सॉरी नॉट लिमिटेड कोऑपरेटिव बैंक है वो आपकी ATP के लिए एलिजिबल नहीं है. तो अल्फा इज एलिजिबल बट गामा इज नॉट. आपको सिर्फ अल्फा और गामा का ही पूछा है. अल्फा इज एलिजिबल फॉर बोथ profits and gains and interest अभी हमने देखा and gamma is not entitled. ठीक है. Would the provisions of AMT be attracted in case of alpha, beta and gamma in AY 23-24 if they do not opt for section BAD? देखो जब AMT कब लगता है, AMT is again something which is you know वो वाले sections नहीं होते हैं जो बहुत समय से तो कभी कोई उन बेचारों पर ध्यान नहीं दे रहा था but suddenly they become just very important. So AMT is one of those sections जिस पे repeatedly पिछले कुछ attempts से अचानक से काफी importance दिया जा रहा है. That is why I've also released a separate revision video for AMT. You can just go through that as well before going through this. तो AMT कब लगता है, जब 10AA 35AD या आपके इनकम बेस्ड जो डिडक्शंस होते हैं वो आपने क्लेम करे हो, है ना. अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपने क्लेम करी है तो आपको AMT आप पे एप्लीकेबल होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है वो इनकम कैलकुलेट करनी रहेगी. लेकिन इनकम बेस्ड डिडक्शंस में उन्होंने ATP को स्पेसिफिकली क्या करके रखा है बाहर.
सो अपार्ट फ्रॉम एटीपी अगर आपकी कोई और इनकम बेस्ड डिडक्शंस है तो आपको एएमटी लगेगा, अदरवाइज अगर आपके इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो एएमटी का कोई फर्क इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, राइट। नाउ इन दिस केस जो आपका अल्फा लिमिटेड है वो एटीपी क्लेम कर रहा है, बट एएमटी में एटीपी को ही बाहर करके रखा है, ठीक है। बात करते हैं बेटा और गामा के बारे में। गामा जो है वो एटीपी क्लेम ही नहीं कर पा रहा बिकॉज इट इज अ कोऑपरेटिव बैंक, तो वो भी ना 10AA ना एनी अदर इनकम बेस्ड डिडक्शन कुछ भी नहीं है, सो एएमटी से बाहर हो गया। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, बेटा उसने वो नए एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया, मैंने शुरू में बोला था आपको 80 JJAA उस पर अप्लाई हो सकता है, तो देख लेते हैं 80 JJAA की अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो वहां पर एएमटी की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। सो लेट अस चेक whether 80 JJAA is applicable in this given case. It has employed 8 new employees with salary 22,000 per month. 22,000 per month. कब employ किए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 10 महीने हो गए। तो मतलब हमारा 240 दिन वाला और वो जो 150 डेज वाला जो भी रिस्पेक्टिव डेज हमारे ऊपर अप्लीकेबल है वो तो पार हो ही गए, है ना। मल्टीप्लाई कितने इंप्लॉइज रखे हैं उसने? 8 इंप्लॉइज रखे हैं और इसका 30% मिलेगा। सो ही इज एलिजिबल, दैट बेटा इज एलिजिबल फॉर 5,28,000 ऑफ डिडक्शन अंडर 80 JJAA, क्योंकि वो इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम कर रहा है, यहाँ पर एएमटी के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। सो टॉकिंग अबाउट all the three cooperative societies and bank respectively, अल्फा और गामा जो है वो बाहर हो गए, लेकिन बेटा के ऊपर JJAA की वजह से आपका एएमटी अप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। What would be the tax liability of Beta Cooperative Society if it opts for BAD? It may be assumed that the gross total income is the same under the normal provisions of Act and BAD. चले सो कैलकुलेट करके देखते हैं। बीएडी में आपका जो रेट है वो 22% है ना, जिसे कंपनीज में किया इन्होंने वैसा ही कोऑपरेटिव्स पे भी दिया है। इनकम सेम है, तो बेटा की दो इनकम्स थी, क्या क्या था? 40 लाख का उसका प्रॉफिट है, क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, और 12 लाख का इंटरेस्ट ऑन एफडी है, 52 लाख की इसकी इनकम हो गई। अब इसमें से बीएडी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो एटीपी का क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एटी JJAA आप क्लेम कर सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पर 80 JJAA जो हमने कैलकुलेट करा था अभी 5,38,000 वो माइनस कर देते हैं। सो इसकी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटेशन, कितना था? 5,28,000, सॉरी 5,28,000, वो आ जाएगी 46,72,000 फॉर द पर्पसेस ऑफ 115 BAD। ओके, एटीपी नहीं मिलेगा क्योंकि बीएडी में आ गए, ऑप्शनल रेजिम में आ गए। 22% प्लस कंपलसरी सरचार्ज ऑफ 10% प्लस सेस इज द टैक्स दैट यू हैव टू पे इज 1175,850, 1175,850। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग। थोड़ा सा इंटरलिंकिंग जरूरी है, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने एटीपी और JJAA दोनों दिया है और बीएडी भी है, तो बीएडी में एटीपी का इम्पैक्ट है, फिर JJAA का अलग इम्पैक्ट है। एएमटी की बात करें तो 80 JJAA का अलग इम्पैक्ट है और एटीपी का। सो एएमटी, बीएडी, एटीपी, 80 JJAA को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इंटरलिंक करके दिया है, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन to have an overall understanding on all these related provisions. What would be the tax liability of Beta if it does not opt for BAD? अब जब BAD से बाहर चला गया तो आप कहां पर आ जाओगे? नॉर्मल पे आ गए। नॉर्मल पे आ गए तो दोनों देखना पड़ेगा, एएमटी भी और ये, क्योंकि एएमटी बेटा पे लगेगा, 80 JJAA आपने क्लेम किया है। तो आ जाते हैं, आराम आराम से चलते हैं। पहले हम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से समझते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो नॉर्मल प्रोविजन होता है, बीएडी से बाहर आ गए, जीटीआई निकालेंगे, इनकम बेस्ड डिडक्शन जो एलिजिबल है, एटीपी भी मिलेगा, JJAA भी मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली जो इनकी बैलेंस इनकम है उस पर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्लैब्स के हिसाब से टैक्स निकालोगे। नॉर्मल स्लैब्स क्या है? 0 to 10 10%, 10 to 20,000 20%, एंड मोर देन 20,000 आपका जितना भी इनकम है उस पर 30% से आपको क्या देना होता है? टैक्स। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस पे मतलब बेटा कोऑपरेटिव पे नॉर्मल प्रोविजन से इसकी इनकम कितनी आएगी। तो जो 40 लाख का इसका टोटल 52 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है, 40 लाख तो इसको एटीपी में मिल जाएंगे, पर 12 लाख इंटरेस्ट ऑन एफडी पे कोई बेनिफिट नहीं है। इंटरेस्ट with other cooperative societies is eligible, but interest on cooperatives interest on FD from bank is not eligible, तो उस पर नहीं मिलेगा। और 5,28,000 है ना, 5,28,000 का इसको मिल जाएगा 80 JJAA,
तो इसकी जो इनकम हो गई एज पर रेगुलर प्रोविजंस वो हमारी आ गई 6,72,000 बराबर। अब इस पर हम लगा लेते हैं टैक्स 6,72,000 पर अगर हम स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगाएं, जो कोऑपरेटिव्स का स्लैब है 20,000 हटा देती हूँ मैं, 30% प्लस 3,000 इज 198600 प्लस इस पे सीधे सेस लगेगा, बाकी कुछ अप्लाई होगा नहीं, इनकम कम है तो 206,544 rounding up to the nearest multiple of 10, 206,540 is the tax as per regular provisions। अब जब आप बीएडी से बाहर आ गए तो आप पे एएमटी लगेगा क्योंकि बेटा एटीजेजे डबल ए भी क्लेम कर रहा है along with एटीपी। तो एटीजेजे डबल ए आप क्लेम कर रहे हो तो आपका जो एटीजेजे डबल है वो एड बैक हो जाएगा 672 प्लस 528, 12 lakhs is your adjusted total income। क्योंकि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख का स्लैब आपका लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, एएमटी से बाहर हो गए, देयरफॉर आपका जो रेगुलर टैक्स पेएबल है वो पे करना पड़ेगा 206,540। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम ज्यादा आ जाता तो फिर आपको विच एवर इज हायर पे करना पड़ता है ना, एएमटी और नॉर्मल प्रोविजंस। तो हमारा टैक्स हो गया 206,540। सो हमने बेटा का दोनों तीनों समझ लिया, एएमटी भी समझ लिया, नॉर्मल भी समझ लिया और बीएडी भी समझ लिया। अब आगे आ जाते हैं 11th। Would it be beneficial? Last question for this case scenario. Beneficial for alpha, beta, and gamma to opt for Section 115 BAD for assessment year 23-24. It may be assumed that the gross total income is same under normal and BAD in all cases. ठीक है, तो अब एक एक करके चलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम आराम से चलते हैं। सबसे पहले अल्फा, तो बीएडी ऑप्ट करना है कि नहीं वो ये पूछना चाह रहे हैं। जब जब आप ऑल्टरनेटिव से बाहर आते हो, बीएडी हो बीएससी हो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स आपको ध्यान रखना है कि आप एएमटी में आ जाओगे। सेम इज द केस ऑफ कंपनीज एज वेल, कि आप ऑल्टरनेटिव रेजिम से बाहर आ जाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर और बैट दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम अगर बीएडी के बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे दोनों चीजें सोचनी है। जब मैं बीएडी के हिसाब से सोच रही हूँ तो मुझे सिर्फ बीएडी देखना है, ठीक है। तो अल्फा पे चलते हैं। अल्फा के केस में उसको रेगुलर इनकम जो है उसकी वो पूरी एग्जेम्प्ट एक तरीके से, क्योंकि एटीपी में दोनों कवर हो रहे हैं, 20+3 इन्वेस्टमेंट इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उस पर इंटरेस्ट। नाउ ये जो अमाउंट है अगर आप इस पे एएमटी भी देखो तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपका एटीपी एएमटी से भी बाहर हो जाता है तो रेगुलर में इसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट बीएडी, बीएडी में आप एटीपी क्लेम नहीं कर पाओगे तो पूरा 23 लाख आपकी एक तरीके से टैक्सेबल हो गई। 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस सेस, कोई मतलब ही नहीं निकालने का। ऑब्वियसली इसके लिए रेगुलर प्रोविजन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अल्फा तो रेगुलर के हिसाब से ही जाएगा। बेटा पे अगर हम देखें तो बेटा के हमने दोनों अभी कैलकुलेट करें तो फिर से मेहनत क्यों करें, ऊपर के दोनों आंसर्स हमारे उसी से रिलेटेड थे, बेटा से रिलेटेड थे। मैंने दोनों को साथ में लिखा है जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो बेटा में रेगुलर में इतना टैक्स है और बीएडी में इतना टैक्स है, तो ऑब्वियसली आप रेगुलर ही ऑप्ट करोगे। तो अल्फा में रेगुलर, बेटा में रेगुलर, क्योंकि इनमें एटीपी मिल पा रहा है अपने को तो बहुत फर्क पड़ जा रहा है, एएमटी से बाहर हो जा रहे हैं, है ना, एटीपी की वजह से। अब बात करें बैंक की, बैंक को एटीपी मिल नहीं पा रहा है, तो एज पर रेगुलर प्रोविजंस अगर हम बैंक का प्रॉफिट निकालते हैं, वही हमारे जो रूल्स हैं एज पर द बैंक, उसके हिसाब से हमारा जो टैक्स आ रहा है, और बीएडी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो गामा के केस में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसका एटीजेजे डबल ए भी नहीं है, एटीपी भी नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो कोई भी ऐसा अलग कुछ वो नहीं है डिफरेंस। तो सेम ही अमाउंट पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसके लिए जो है वो बीएडी जो है बेनिफिशियल हो जाएगा। सो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होता है। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अल्फा एंड गामा टू ऑप्ट, नहीं, अल्फा बेटा रेगुलर, गामा बीएडी। अल्फा नॉट बेनिफिशियल, नहीं, बेनिफिशियल फॉर गामा टू ऑप्ट बीएडी बट नॉट फॉर अल्फा एंड बेटा, है ना, क्योंकि उस पे हमारा टैक्स जो है वो कम हो रहा है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द सेकंड केस सिनेरियो। अगेन टू गिव अ क्विक रिव्यू, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, एटीपी और बीएडी का एक बहुत भी इंटरलिंक करके बहुत अच्छा केस उन्होंने डेवलप किया है। प्रॉपरली इसे सॉल्व करके देखें, और बिल्कुल कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो फील फ्री टू डिस्कस। आगे चलते हैं, 3-4 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हमारा केस सिनेरियो वाला जो है वो बाहर हो गए हैं हम, तो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ABC Limited held dealer conference on 22-23 August in Kochi to educate the dealers about the new product
and how the product is better than the similar products of other companies. ठीक है, conference हुआ dealers का. Spouse was allowed to accompany the dealer and they could stay in the hotel from 20th of August. Leisure trip was organized for dealers and their spouse on 20th and 21st August being the weekend. तो conference होनी थी 22-23 को, उन्होंने बोला आप spouse को भी ले जा सकते हो, और क्योंकि weekend से just अगले ही था तो उन्होंने बोला कि आप spouse के साथ जा रहे हो तो हम आपको वीकेंड का जो है वो ट्रिप भी आपको हम इस फाइनेंस कर देते हैं. ठीक है, एक्सपेंसेस एंड एयर फेयर, होटल, लीजर ट्रिप सब कुछ कंपनी ने मीट किया, खुद का भी और वाइफ का भी, मतलब स्पाउस का भी. ब्रेकअप ऑफ दिस एक्सपेंडिचर फॉर मिस्टर अशोक शर्मा, तो मिस्टर अशोक एंड मिसेस अशोक शर्मा दोनों गई साथ में. अ डीलर फॉर द अबव इज एज फॉलोज, तो आपको एग्जाम पूरा दे रखा है. आने जाने का खर्चा दोनों का 25-25 हजार. होटल स्टे 20 और 21 तारीख का है 30,000 दोनों का मिलाकर. होटल से 22-23 का दोनों का मिलाकर 28,000 है. लीजर ट्रिप के खर्चे हैं 22,000 दोनों के. और कॉन्फ्रेंस का खर्चा जो सिर्फ सर का है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस सिर्फ सर ने अटेंड करी, वो 20,000 है. What will be the value of perquisite for 194 hour? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके केस में एज एन अमेंडमेंट दिए गए हैं. जब हम कोई भी अमेंडमेंट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनकी बारीकियों पर ध्यान देना. और ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये हमारा जो 194 आर का सप्लीमेंट्री पेपर है. अगेन आई हैव रिलीज्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एज वेल. आई विल शेयर द लिंक अलोंग विद दिस वीडियो. कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियो टू गेट एन क्विक ओवरव्यू ऑन द होल 194 आर सेक्शन. इस इतने से पॉइंट में उन्होंने पूरा केस सिनेरियो बना, पूरा क्वेश्चन बना दिया ऑब्जेक्टिव का, कि अगर आप घूमने जा रहे हो कॉन्फ्रेंस के साथ तो घूमने का जो खर्चा है वो तो आपका परक्विजिट माना जाएगा. कॉन्फ्रेंस का खर्चा परक्विजिट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो कंपनी का खर्चा है जो वो आपके लिए दे रही है. अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो उसका तो पूरा खर्चा परक्विजिट हो गया. और जो व्यक्ति कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब मिस्टर अशोक शर्मा, उसका कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले का जो खर्चा है, एज पर दिस लाइन, इफ यू गो थ्रू दिस, a day immediately prior to the actual start date and a day immediately following the actual end date will not be considered as overstay. तो अगर आपको 4 दिन का खर्चा दिया गया है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो एक दिन पीछे का खर्चा और एक दिन आगे का खर्चा अगर आपकी कंपनी ने उठाया है तो वो आपके हाथ में परक्विजिट नहीं माना जाएगा. इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे हमको ये हमारा जो केस है वो पूरा सॉल्व करना है, कि हमारे केस में आप किस चीज को परक्विजिट मानोगे और किस चीज को परक्विजिट नहीं मानोगे. तो सबसे पहली चीज तो आने जाने का जो खर्चा है मिस्टर शर्मा का, वो तो आएगा नहीं. मैडम का पूरा आ जाएगा, तो हम ऐड करते जाते हैं, आप लोग भी स्टार्ट करें. होटल स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर 20 और 21, तो यहाँ पर आपका जो 21 तारीख का खर्चा है मिस्टर अशोक शर्मा का, वो बाहर हो जाएगा. तो मैडम के 15,000 तो पूरे जुड़ेंगे, सर का 7,500 जुड़ेगा, 7,500 नहीं जुड़ेगा. अभी हमने बात करी, उसको ओवरस्टे नहीं मानेंगे. होटल स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर ऑफ द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का तो सर का जुड़ेगा ही नहीं, सिर्फ मैडम का जुड़ेगा, क्योंकि वो तो मेन कॉन्फ्रेंस का दिन है. लेजर ट्रिप तो पूरा ही ऐड हो जाएगा, वो तो हमारा एक्सपेंस है ही सही, क्योंकि वो भले ही मैडम का हो सर का हो. एंड एक्सपेंसिव ऑन 22 ऑफ कॉन्फ्रेंस इज नॉट अ परक्विजिट. तो टोटल जो हमारा आएगा, इस तरीके से अगर हम ऐड करते हैं, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्या क्या चीजें नहीं कंसिडर होंगी, तो टोटल हमारा जो अमाउंट ऑफ परक्विजिट आ रहा है वो आ रहा है 83,500. So this is how you will calculate the amount of perquisite which is liable for TDS under section 194R. चलिए, again a question based on amendment. Specified income 115 BBI trust. Question number 13. Let us discuss. Compute the specified income taxable at the rate 30% under section 115 BBI in case of registered charitable trust from the given information. कॉर्पस डोनेशन मिला है उनको. कॉर्पस डोनेशन को जब तक आप स्पेसिफाइड मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, उनका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो 12,20,000 में से आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, SBI डिपॉजिट,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसी एंगेज इन रिटेल कार फाइनेंस, दिस इज नॉट एलिजिबल एज अ स्पेसिफाइड मोड। तो ये आपके हाथ में बीबीआई में स्पेसिफाइड इनकम हो गई। ऐड करते चलते हैं, 4,10,000। इनकम अप्लाइड बाय द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉलोइंग डोनर्स। तो हमने अगेन स्पेसिफाइड पर्संस में पढ़ा है कि अगर किसी का जो डोनेशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो 50,000 की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो फिर वो स्पेसिफाइड पर्सन है और उसकी बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट कोई खर्चा करेगी तो वो आपका एक तरीके से जो 13 सेक्शन हम पढ़ते हैं वहां पर आपका कंसिडर हो जाएगा और स्पेसिफाइड इनकम माना जाएगा। यहाँ पर अर्जुन के लिए जो एक्सपेंस हुआ है वो अलाउड नहीं है, तो वो स्पेसिफाइड इनकम में चला गया। इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर वैभव गुप्ता ट्रस्टी, अगेन ट्रस्टी, सेक्शन 13 में चले गए हम, 25,200। Income applied by the trust for the benefit of Mr. Shamlal Manohar Arora being the employees of the trust, employees हैं, चलेगा। employees के केस में कोई अलग से disallowance नहीं attract होगा। Value of educational service made available by the trust to the 2 children of Mr. Vaibhav Gupta, ये भी चलेगा। ट्रस्ट है, उनका खुद का सर्विस ही है, अलग से कोई बेनिफिट नहीं दिया है, तो ये भी चलेगा। कोई अलग से आप जो नॉर्मल लोगों को दे रहे हो उसके अलावा अगर आप बेनिफिट दोगे, देन इन दैट केस दैट इज कंसिडर्ड स्पेसिफाइड इनकम। Last point, amounts set apart by the trust for previous year 21-22 for purposes of 11-12 utilized for making donation to another charitable trust. Again, आपने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए रखा था लेकिन उसका यूज किसी और जगह हो गया, तो वो भी स्पेसिफाइड इनकम में आ गया। सबका ऐड करके हमारा जो अमाउंट आता है दैट इज 678,200. So this will be the specified income under BBI, which will be chargeable to tax at the rate of 30%. अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि व्हाट इज द इनकम, ना कि टैक्स। अगर क्वेश्चन में दिया है कंप्यूट द टैक्स अंडर 115 BBI, तो फिर आप इसका 30% करके जो आंसर आएगा उस पर टिक करोगे। ठीक है, चलिए 14th, ABC Limited has failed to deduct tax on payment to contractors even though the payment exceeded the threshold limits. XYZ has deducted tax of 62 lakhs payment to contractors on time but not remitted up to 31st of March. Which of the following statement is correct as regard the consequence? तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सिंपल है, बस पेनल्टी के सेक्शंस हमें पता होने चाहिए कि फेलियर टू डिडक्ट पे क्या है, फेलियर टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट वाले केस में क्या पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लगेगा। तो इंटरेस्ट तो दोनों में लगेगा, हम जानते हैं 1%, 1.5% वाला जो इंटरेस्ट होता है डिफॉल्ट ऑफ टीडीएस, तो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। पेनल्टी सेक्शंस जो रहेंगे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है ज्यादा, बट पेनल्टी सेक्शंस आपको रिस्पेक्टिव पता होने चाहिए कि 271C जो है वो किस केस में लगता है और 276B जो है वो किस केस में लगता है। सो फर्स्ट वाले केस में उसने फॉल्ट किया है डिडक्शन में और सेकेंड वाले केस में उसने फॉल्ट किया है डिडक्ट करके डिपॉजिट करने में। तो डिडक्ट करके डिपॉजिट करना इज ऑलवेज अ बिगर मिस्टेक, बिकॉज आपने सरकार का पैसा अपने पास रखा हुआ है, आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो एक अलग बात है, बट आपने डिडक्ट करके रख लिया बट उसको अपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, इज अ बिगर ऑफेंस ऑलवेज। सो फर्स्ट वाले केस में आपके ऊपर पेनल्टी है जो आपका नॉन फेलियर टू डिडक्ट है। एबीसी में देखो फेल टू डिडक्ट है और XYZ में क्या बोला है, उसने डिडक्ट कर लिया बट रिमिट नहीं किया है, तो बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट आपके ऊपर पेनल्टी है। और क्योंकि एबीसी ने एक सर्टेन अमाउंट जो आपका अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है इन द गिवन केस, उसने डिडक्ट तो कर लिया पर डिपॉजिट नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन विल बी अट्रैक्टेड। सो डिपेंडिंग ऑन द गिवन केस आपको देखना रहेगा कि पेनल्टी लगेगी या प्रोसिक्यूशन और कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में ये एप्लीकेबिलिटी आएगी। चलिए, इंटरेस्ट तो दोनों को ही लगेगा, है ना, 2011A का इंटरेस्ट दोनों को ही देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मिस्टर एक्स, लास्ट वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। रीट्स और डिविडेंड स्ट्राइपिंग दोनों के एक बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन दिया है। डिविडेंड स्ट्राइपिंग इज गिवन एज अमेंडमेंट इन सप्लीमेंट्री स्टडी पेपर, so again that is very very important for the upcoming examination. Mr. X, a resident Indian, is in receipt of income from Ganga REIT, Yamuna REIT and Indus REIT. 3 REITs की इनकम आ रही है उसको। The particulars are as follows. ए जो है मतलब जो एसपीवी है गंगा का,
वो BAA ऑप्ट करता है, और बाकी के दोनों के जो SPV है वो BAA ऑप्ट नहीं करते। तो आपको क्लिक हो गया होगा। डिपेंडिंग ऑन कि जो SPV है वो 115BAA मतलब ऑप्शनल रेजिम ऑप्ट कर रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि वहां से जो डिविडेंड आ रहा है उस पर पास थ्रू स्टेटस मिलेगा कि नहीं, और वो डिविडेंड इंडिविजुअल मतलब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा या फिर रीट के हाथ में टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा और किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर जो SPV है वो 115BAA ऑप्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, पहले केस पढ़ लेते हैं पूरा। रिकॉर्ड डेट इज 1 जून। तो हमारा जो डिविडेंड स्ट्रैपिंग का केस है वो क्या कहता है कि रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर खरीदा और सिक्योरिटी शेयर्स में 3 महीने के अंदर ट्रांसफर या 9 मंथ्स, इन केस ऑफ यूनिट्स 9 मंथ्स के अंदर आपने ट्रांसफर किया है तो आप पे डिविडेंड स्ट्रैपिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। आर गंगा यमुना एंड इंडस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। पहली बात तो उसने ये पूछी कि भैया जो डिविडेंड हम दे रहे हैं यूनिट होल्डर को, कि इस पे हमको TDS काटना है कि नहीं काटना है, एंड ऑल्सो वुड द डिविडेंड स्ट्रिपिंग प्रोविजंस बी अट्रैक्टेड इफ मिस्टर एक्स sells the units held by him in all 3 REITs at a loss in January 2023। तो पहले तो हम ये समझ लें कि इन डिविडेंड्स पे टैक्सेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया SPV अगर ऑप्शनल रेजिम ऑप्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि डिविडेंड जो है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा और किसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। इन केस ऑफ गंगा द SPV इज ऑप्टिंग फॉर 115BAA, और जब SPV 115BAA ऑप्ट करता है तब इस डिविडेंड को रीट के हाथ में जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया गया है। बी और सी दोनों के ही SPV जो है वो BAA ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन दिस केस जो डिविडेंड है वो रीट के ही हाथ में टैक्सेबल होगा और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। मेन पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं सॉल्यूशन में ताकि हमें क्विक रिव्यू मिलते जाए हर केस का। जब यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम टैक्सेबल है तो whenever the REIT is distributing the income to the unit holder, that will be subject to TDS. And if the income is not taxable in the hands of the unit holder, then TDS is not applicable. Simple. तो पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि गंगा जो है उसको टैक्स डिडक्ट करना है और यमुना और इंडस को टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। सो एक टेबल मैंने बनाया है। सी TDS किस किस पर अप्लाई होगा? गंगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिविडेंड है यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है और रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो टैक्सेबल है, इसलिए TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो TDS इज एप्लीकेबल, यमुना और इंडस को नहीं करना है। अब डिविडेंड स्ट्राइपिंग इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन व्हाई। डिविडेंड स्ट्राइपिंग के प्रोविजंस तभी लगते हैं जब आपका जो इनकम है वो मतलब जिस पे आपको लॉस हो रहा है उस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इनकम आ रही है वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज 94(7) शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इन दिस गिवन केस पहले तो हम ये समझ लें कि 94(7) वही लगेगा जहां पर ये इनकम शेयर होल्डर मतलब यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो पहले गंगा तो बाहर हो गया क्योंकि गंगा के हाथ में तो टैक्सेबल है, सो गंगा के हाथ में तो 94(7) नहीं लगेगा। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट यमुना एंड इंडस। इन दोनों के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। तो 94(7) का जो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स और 9 महीने या 3 मंथ डिपेंडिंग ऑन द केस, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यमुना के केस में आपने जनवरी में खरीदा है, रिकॉर्ड डेट है जून, और इंडस के केस में आपने अप्रैल में खरीदा, रिकॉर्ड डेट है जून, तीनों ही लॉस में बेचे। ये आपका जो परचेज है 3 महीने के पहले हो गया और ये जो है ये विद इन 3 मंथ्स हो गया। तो इंडस के केस में 94(7) शैल बी एप्लीकेबल एज द टाइम लिमिट इज फुलफिलिंग। रिकॉर्ड डेट के जो आपको टाइम लिमिट्स दिए उसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्लस जो डिविडेंड इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है। एंड सेकेंड केस आपका यमुना में, क्योंकि डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट है लेकिन वो जो परचेज है वो 3 महीने से पहले की हो गई, 94(7) से आप बाहर हो गए, तो आपके ऊपर यहाँ पर 94(7) के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा आएगा। सो लेट अस चेक
The answer will be Ganga is required to deduct tax, whereas Yamuna and Indus are not required to deduct tax. Dividend stripping provisions under 94(7) would be attracted in case of the Indus REIT at a loss, but not in sale of Ganga and Yamuna REIT. So this is how they have integrated a very, very good question, a very good question of integration of dividend stripping and REIT provisions, that how can you interlink both these things. I always say this in all of my CA final lectures whenever I teach, that interlinking is very important. When you are a CA final student, now you're going to become a professional after certain period of time, and एग्जाम के अलावा आप लोगों की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. आप जब कंसल्टेंसी दे रहे होंगे किसी क्लाइंट को, तो उसके उसके केस में सारे सेक्शंस एक साथ लग रहे हैं ना. वो तो इनकम सैलरी से भी कमा सकता है, वो रीट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसने डिविडेंड भी कमाया. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रोविजंस इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, यू नीड टू इंटरलिंक कि यार डिविडेंड इसको मिला है तो ये एग्जेम्प्ट है, और इसने शेयर्स तुरंत बेच दिए, तो क्या इस पे डिविडेंड स्टाइपेंड लग सकता है. तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये इंटरलिंक करना हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड फॉर दैट ये सब केसेस और क्वेश्चंस हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं. तो गो थ्रू ऑल द प्रोविजंस प्रॉपर्ली, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली भी क्वेश्चंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोइंग थ्रू द ऑप्शंस is very important properly, because there is a possibility कि आपको दो ऑप्शन सही लग सकते हैं, या आपने जो कंप्यूट किया आपका आंसर ऑप्शन से तो मैच हो रहा है बट वो सही नहीं है. तो हो सकता है कि कहीं कोई चीज मिस हो रही हो. वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको सॉल्व करना है एंड अकॉर्डिंगली सही आंसर पर टिक करना है. तो आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. In case of any further doubts, feel free to contact. All the very best for your examinations.